IMF سے پاکستان کو 1 ارب 30 کروڑ ڈالر موصول ہو گئے۔ IMF نے اسٹیٹ بینک کو 1 ارب 30 کروڑ ڈالر منتقل کر دیے۔ IMF کا وفد پاکستان پہنچ گیا۔ وزارت خزانہ حکام سے اہم ملاقاتیں، نئے بجٹ اہداف، ٹیکس ریونیو، مالی اصلاحات پر تبادلہ خیال، توانائی اصلاحات اور نجکاری میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی سفارش پر صدر مملکت نے لیاقت شہید کے لیے ستارہ جرت کی منظوری دے دی۔ لیاقت شہید نے اپنی جان قربان کر کے بڑے جانی نقصان کو ٹال دیا۔ شہید کی والدہ، صاحبزادے اور بھائی صدر پاکستان سے اعزاز وصول کریں گے۔ شہید لیاقت نے اٹک کی تحصیل جنڈ میں خودکش دہشت گرد کو روک کر کئی قیمتی جانیں بچائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر متحدہ عرب امارات شیخ محمد بن زاید کو ٹیلی فون، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی مفادات کے تحفظ کے لیے تعاون بڑھانے پر زور۔ امریکی اور UAE صدور کا تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا بھی اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال اور علاقائی سلامتی کے امور سمیت عالمی علاقائی امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر بھی تبادلہ خیال۔ مشرق وسطیٰ کی تازہ پیش رفت پر گفتگو۔ ایران سے دشمنی کی جرت کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان۔ امریکہ اور اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ آنے والے دور میں اچھائی اور برائی میں فرق کا تعین کرے گی۔ عالمی برادری ایران کے حق میں آواز بلند کرے اور عملی اقدام کرے۔ اسرائیل کا جنگی جنون کم نہ ہوا۔ جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان پر گولہ باری کر کے مزید 13 افراد شہید کر دیے۔ شہداء میں بچہ، خاتون اور ریسکیو اہلکار بھی شامل۔ لبنانی حکام کے مطابق نبطیہ پر اسرائیلی حملے میں 2 ریسکیو اہلکاروں سمیت 5 افراد شہید ہوئے اور جشیت پر اسرائیلی فوج کے حملے میں 4 بنت الجبیل میں بچے اور خاتون سمیت 4 شہری جان سے گئے۔ پنجاب میں اضلاع کو خود مختار بنانے کا تاریخی فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت کمشنر کا اجلاس۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پلان کے تحت مقامی ریونیو سے عوامی فلاح کے منصوبوں کی منظوری۔ صوبے میں اضلاع کے وسائل سے اربوں روپے کی لاگت سے ترقیاتی کاموں کا آغاز۔ کمشنرز نے وزیر اعلیٰ کو ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ مریم نواز فیصل آباد میں بچی کے گڑھے میں گر کر جاں بحق ہونے پر شدید برہم۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز سے ہر ماہ کھلے مین ہولز نہ ہونے کا بیان حلفی لینے کا حکم۔ ایران جنگ میں امریکہ کے 39 طیارے تباہ ہوئے۔ امریکہ کے ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایڈورڈ کیس کا دعویٰ۔ ایڈورڈ کیس نے سینیٹ کمیٹی میں خصوصی سماعت کے دوران پینٹاگون کے CFO جے ہسٹ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ایران جنگ میں امریکہ کو نقصان کا پوچھا تو جے ہسٹ کئی سوالوں کا گول مول جواب دیتے رہے۔ اور اسلام آباد میں موسم گرم اور خشک۔ وفاقی دارالحکومت میں پارہ 33 ڈگری تک گر جائے گا۔ کراچی میں بھی گرمی کی شدت برقرار۔ حبس کی کیفیت، درجہ حرارت 38 ڈگری تک پہنچے گا۔ لاہور کے درجہ حرارت میں نمایاں کمی، ہوائیں چلنے سے گرمی کی شدت کم ہو گئی۔ منشیات فروش انمول عرف پنکی کے خلاف مقدمے میں پولیس کی مبینہ غفلت سامنے آ گئی۔ FIR میں گھر کا پتہ ہی غلط لکھ ڈالا۔ مقدمہ متن کے مطابق ملزمہ کو گارڈن میں رہائشی عمارت کے فلیٹ سے گرفتار کیا گیا۔ جس فلیٹ کا پتہ مقدمے میں ڈالا گیا وہاں 8 سال سے کرائے پر فیملی رہائش پذیر انمول عرف پنکی کو نہیں جانتے۔ بتایا جائے پولیس نے ہمارے گھر کا پتہ FIR میں کیسے ڈالا۔ سخت ذہنی اذیت کا شکار فیملی کا موقف۔ ادھر ملزمہ کی گرفتاری کی خبر آنے پر مالک مکان نے رہائشیوں کو فلیٹ خالی کرنے کا کہہ دیا۔ پنکی ڈان آگے قانون پیچھے، گرفتار منشیات فروشہ کا شاہانہ پروٹوکول۔ گرفتار خاتون کی عدالت میں بغیر ہتھکڑی پیشی۔ ملزمہ بے خوفی سے عدالتی احاطے میں گھومتی رہیں۔ پولیس اہلکار پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ 1 کلو سے زائد تیار کوکین، 15 کیپسول اور اسلحہ برآمد۔ پنکی 10 مقدمات میں انتہائی مطلوب اور مفرور تھی۔ پولیس نے 13 روز کا جسمانی ریمانڈ مانگا، عدالت نے مسترد کر دیا۔
2 हफ्ते के लिए जेल भेज दिया गया। आंखों पर काला चश्मा, चेहरे पर मास्क, हाथ में हथकड़ी के बजाय मिनरल वाटर की बोतल। मुलजिमा पिंकी के प्रोटोकॉल पर एडिशनल आईजी कराची का नोटिस, एसएचओ गार्डन हनीफ सियाल को मुअत्तल कर दिया। एसआईओ जफर इकबाल, आईओ सईद अहमद भी मुअत्तल। एसएसपी साउथ इंक्वायरी अफसर मुकर्रर, 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। गिरफ्तार मुलजिमा पिंकी के सनसनीखेज इंकशाफात। पिंकी का 13 साल कबल मुनशियात फरोशी का आगाज करने का एतराफ। सबसे ज्यादा 16 से 20 साल के लड़के लड़कियों को कोकेन का आदी बनाया। कोकेन को मजीद मोहलक बनाने के लिए केटामाइन और इस्ट्योन का इस्तेमाल करने का इंकशाफ। गोल्ड ब्रांड के नाम से 40,000 रुपये ग्राम कोकेन फरोख्त की जाती रही। मुलजिमा कराची से फरार होकर लाहौर में खुफिया लेबॉर्ट्री चलाती रही। मुलजिमा का लाहौर में मुबैना तौर पर एक पुलिस अफसर से शादी का भी इंकशाफ। कोकेन के खरीदारों में शोबिज इंडस्ट्री के अफराद भी शामिल। मुनशियात फरोश खातून अनमोल उर्फ पिंकी का कानून नाफिज करने वाले इदारों को खुला चैलेंज। मुलजिमा ने कहा, हम धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, उठा सकते हो तो उठा लो। असल में आप लोगों की अक्ल घुटनों में है। जिस दिन दिमाग से सोचोगे, पिंकी की तरह ब्रांड बन जाओगे। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान और पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें बेहतरीन हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। डोनाल्ड ट्रंप की चीन रवानगी से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान के साथ एक अच्छी डील हो जाए। चीनी सदर से ईरान जंग पर तवील बात करूंगा। ईरान मामले पर चीनी सदर की मदद की ज़रूरत नहीं होगी। ईरान 100% यूरेनियम अफजूदगी रोक देगा। ईरान से जंगबंदी या ऑपरेशन फ्रीडम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौमी सलामती मीटिंग बुला ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं। ट्रंप फौजी एक्शन की तरफ माइल हो रहे हैं। नया हमला हुआ तो यूरेनियम अफजूदगी 90% होगी। इस मुमकिन ऑप्शन का पार्लियामान में जायजा लेंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान इब्राहिम रसाई ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। माहिरीन के मुताबिक 90% यूरेनियम अफजूदगी का मतलब एटमी बम बनाने के करीब पहुंचना है। इसहाक डार का चीनी वजीर खारजा से राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों पर इत्तफाक। चीनी वजीर खारजा वांग जी ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतालिक अमरीकी टीवी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। दफ्तर खारजा ने अमरीकी टीवी की रिपोर्ट गुमराह कुन करार दे दी। तर्जुमान के मुताबिक क़यास सराई का मकसद अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुंचाना है। कुछ हवाई जहाज और इमदादी एहलकार मुतवक्के दौरों की वजह से मौजूद रहे। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारा जंगबंदी की मुद्दत के दौरान पहुंचा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ और अजरबैजान के सदर में टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात के अज़्म का आदा। वजीर आज़म का वर्ल्ड अर्बन फोरम की कामयाब इनेकाद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द फोरम में शिरकत करेगा। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल, अमन की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। सदर अलीफ ने ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। तुर्की और कतर की पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की हिमायत। सिफारतकारी के जरिए मसले के हल पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान की दोहा में मुलाकात। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है कतर खलीजी रियासतों के साथ मुशावरत जारी रखेगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आबना हुर्मुज़ को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इस जंग से दुनिया और खित्ते में अदम इस्तेहकाम हुआ। अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर के खात्मे का खदशा। ब्रेंट खाम तेल $107 फी बैरल हो गया। WTI की कीमत $101 फी बैरल हो गई। आमना हरमुज की बंदिश से ओपेक तेल की पैदावार कम करने पर मजबूर हो गया। पैदावार 26 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 2 करोड़
2 क्रूड बैरल से 8,30,000 बैरल यौमिया इनपुट। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल और वज़ारत दाखिला के अमूर पर अहम इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म की कानून नाफिज करने वाले इदारों में करप्शन की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। लकी मरवत के सराय नौरंग बाजार में धमाका, 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद, खातून और बच्चे समेत 18 अफराद जख्मी हो गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की शदीद मुज़म्मत। शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, कहा हमारी तमाम हमदर्दियां शोहदा के खानदानों के साथ हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के हर तबके ने कुर्बानियां दी। दहशत गर्दी को कुचलने के लिए पूरी कौम यकजान है। अपनी जान दे दी मगर सैकड़ों जिंदगियां बचा लीं। कोहाट में शहीद शहरी लियाकत अली की नमाज जनाजा अदा। रेलवे मुलाजिम ने खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश की थी। बहादुर शहरी ने जान कुर्बान करके मकामी आबादी को तबाही से बचा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद लियाकत अली को खिराज तहसीन। कहा, लियाकत शहीद ने शुजाअत की आला मिसाल कायम की है। ये मुल्क हमारा है, इसकी फतह को, इसकी जीत को सेलिब्रेट करना बतौर पाकिस्तानी हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब का फ़र्ज़ है। इस मुल्क का झंडा, इस मुल्क का फ्यूचर, इस मुल्क की जो सलामती है वो आपके हाथ में है। जब कौम मुत्तहिद होती है, जब हमारी यूथ मुत्तहिद होती है, तो अभी इंडिया से जो हमने जंग जीती है बुनियान महसूस, जब अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले इस तरह इकट्ठे होते हैं तो फिर बुनियान महसूस की फतह जैसे मोज़े होते हैं। खवातीन को हरासा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। केसेस में खवातीन की शनाख्त जाहिर नहीं की जाएगी। जरूरतमंदों को होनहार स्कॉलरशिप दे रहे हैं। वजीर आला मरियम नवाज का लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में खिताब। कहा, कोई सोच भी नहीं सकता था बच्चियां बाइक्स चलाएंगी। कॉलेज में लग्जरी हॉस्टल, AI रोबोटिक सेंटर बनाने का ऐलान। वजीर आला को उनके जमाना तालिब इल्मी की तस्वीर पेश की गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात की तैयारियां। IMF वफ्द बजट मुज़ाकरात के लिए जल्द पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात आज से शुरू होने का इम्कान। IMF वफ्द 1.5 हफ्ते तक पाकिस्तान के साथ बजट पर मुज़ाकरात करेगा। गंदम का बहरान या मसनूई किल्लत, माफिया ने अवाम को घुटनों पर ला खड़ा किया। गंदम 3500 रुपए मन भी नायाब। जखीरा अंदोजों ने मार्केट से अनाज गायब कर दिया। आटे की कीमतों को पर लग गए। 20 किलो का थैला 2300 की हद पार कर गया। अवाम दुहाई देने लगे। पाकिस्तान को बांग्लादेश की सरजमीन पर पहले टेस्ट में शिकस्त। बांग्लादेश ने कौमी टीम को 104 रन से हरा दिया। 268 रन का हदफ पहाड़ बन गया। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 163 रन बनाकर आउट हो गई। अब्दुल्ला फजल के सिवा किसी ने मुज़ाहमत न की। अब्दुल्ला फजल ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए। कप्तान शान मसूद और इमामुल हक 2-2 रन बना सके। अजान उवैस 15 और सलमान अली आगा 21 रन पर पवेलियन लौट गए। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने 15-15 रन बनाए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज। लाहौर में टिकटों की फरोख्त 22 मई से शुरू होगी। जनरल इंक्लोजर टिकट की कीमत 200 रुपए मुकर्रर। फर्स्ट क्लास टिकट 300, प्रीमियम 400 रुपए में दस्तयाब। VIP टिकट 500 रुपए में मिलेगी। दूसरा और तीसरा वनडे 2 और 4 जून को लाहौर में खेला जाएगा।